see how much you all can score, and at the end of the session, comment your scores. So here's question number 1. Consider the following statement regarding the Supreme Court's use of Article 142. पहला statement कह रहा है Article 142 empowers the Supreme Court to pass any order necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it. Second statement है the court decided to quash all FIRs related to NEET UG protests without any exception. And the third one is the Solicitor General stated that police investigation would be confined to persons identified with serious criminal antecedents at the protest sites. So हमें बताना है कौन से statements correct है तीनों में से, और ये basically जो NEET UG का हमारा जो protest हुआ था उससे related है. So comment your answers. What will be the correct answer from option A, B, C, D? So the correct answer will be option A. That is first and third statement is correct and the second one is incorrect. Okay. सो चलिए देखते हैं एक एक स्टेटमेंट करके क्यों सही है क्यों गलत है. तो सबसे पहला स्टेटमेंट है सही है क्योंकि आर्टिकल 142 ये सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कंप्लीट जस्टिस करने के लिए. ठीक है, दिस कंप्लीट जस्टिस पावर द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस इन्वोक्ड हियर. तो राइट, दैट्स व्हाई फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाता है. आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है वो जस्टिस कर सकता है, कंप्लीट जस्टिस. राइट. सेकेंड है ये गलत है. सेकेंड स्टेटमेंट क्यों गलत है हमारा, क्योंकि टोटली एफआईआर जो है वो नहीं हटाया गया है. उसमें जो जिसका क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स है उनके ऊपर केस जो है वो दर्ज करा जाएगा, एंड बाकी रेस्ट ऑफ द जो कैंडिडेट्स थे जिनके ऊपर कोई भी एंटीसीडेंट केसेस या सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस नहीं था उनके ऊपर नहीं करा जाएगा, बट जिनके ऊपर था उनको करा जाएगा, है ना. जैसे कि अक्यूज्ड विद सीरियस क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स वर केप्ट आउट ऑफ ऑटोमेटिक कोर्सिंग, एंड दैट्स व्हाई द सेकंड स्टेटमेंट बिकम्स इनकरेक्ट. थर्ड वन हमारा करेक्ट है क्योंकि पुलिस कंफर्म द सीरियस क्रिमिनल बैकग्राउंड लिस्ट ऑफ 2873 आइडेंटिफाइड पर्सन्स, and that's why the statement 3 is correct. Answer हो जाएगा second statement गलत, right, and 1 and 3 is correct. अब ट्रैप यहाँ पे ये दिया गया था कि quash all FIRs unconditionally, so यहाँ पे ये गलत हो जाता है, right. Exception is an absolute word trap as she carved out an exception. इसमें exception mention करा गया था कि जिसके पास antecedent criminal cases है उनके ऊपर उनका FIR quash नहीं करा जाएगा, right. And article 142 important है क्योंकि ये discretionary non applicable article है, and it is used for equitable relief beyond ordinary law by the judiciary by the Supreme Court. Okay, so now moving on to the next question. Assertion reason से related है. पहला assertion है the Supreme Court decided to specifically examine the proportionality of Delhi police use of facial recognition towards technology during the NEET UG protest. The reason for it is the case Puttaswamy 2017 judgment recognized the right to privacy as a fundamental right under Article 21 of the Constitution. करेक्ट आंसर बताना है ABCD में से क्या करेक्ट हो जाएगा. So the answer will be option B. Both A and R are true. Assertion भी सही है, reason भी सही है, but reason is not the correct explanation of A. अब यहाँ पे जैसे आप assertion में देखेंगे तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे proportionality के बारे में बात करा जा रहा है of Delhi police use of facial recognition technology, right? But reason क्या बोल रहा है, A right to privacy से related है. केस पुत्तस्वामी जजमेंट के बारे में बात कर रहा है, ना कि जो नीट यूजी प्रोटेस्ट में जो चल रहा है उससे रिलेटेड डिस्कस नहीं करा जा रहा है रीजन में, राइट. एंड दैट्स व्हाई रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, है ना. यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, बट ये सेपरेट जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. और यहाँ पे ये भी बोला गया था बाय द बेंच क्लैरिफाइड इट विल एग्जामिन प्रोपोर्शनैलिटी सेपरेटली फ्रॉम आर्टिकल 21. ठीक है, आर्टिकल 21 में नहीं इसको इंक्लूड करा जाएगा, एंड दैट्स व्हाई द रीजन बिकम्स इनकरेक्ट. नॉट incorrect statement but the incorrect explanation. Okay, अब यहाँ पे एक important takeaway ये है कि facial recognition technology जो है उसका अभी particularly क्या है, there is a regulatory gap. ठीक है, governance currently has no dedicated statute in India. So ये एक regulatory gap है. आपको एग्जाम में मेंशन करके कंफ्यूज करा जा सकता है, वो कंफ्यूज करा जा सकता है मे बी कि आपको बोला जाए facial technology से रिलेटेड कोई लॉ है, मतलब उसको, है ना. सो अभी इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड there is a regulatory gap and we must remember that. So now let's move on to the next one. Consider the following statements on census 2027. पहला statement कह रहा है the census makes the first caste enumeration undertaken by independent India. Second है SC/ST respondents must select their caste from a preset drop-down menu while other can enter their caste name in an open field. And the third statement is the census schedule does not seek any information related to Aadhaar or voter ID. हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा. ऑप्शन है ABCD. चलिए कमेंट करके बताएं हमें क्या हो जाएगा इसका आंसर. सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C. 1 and 2 इज करेक्ट एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, जो कि ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों ने भी आई होप गेस कर लिया होगा करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, है ना. तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है
कि ये पहला कास्ट सेंसस है हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया का। लास्ट कब हुआ था? लास्ट हुआ था 1931 में हुआ था लास्ट, जो कि कॉलोनियल टाइम में ही हुआ था, राइट। बट इंडिपेंडेंट इंडिया में ये पहली बार करा जा रहा है। ओवरऑल जो कास्ट सेंसस है ना 2027 वाला, ये पहली बार है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। SC/ST गेट्स ड्रॉप डाउन मेन्यू, अदर यूज ओपन फील्ड एंड विथ डज नॉट वांट टू डिक्लेयर कास्ट, नो कास्ट ऑप्शन भी है। आप डिक्लेयर करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, वो भी ऑप्शन आपको मिलेगा, राइट। एंड द थर्ड वन गेट्स इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे आपका जो अदर आइडेंटिटी कार्ड्स है उनके बारे में भी पूछा जाएगा। जैसे आपके पास आधार है, मोबाइल है, वोटर है, ड्राइविंग लाइसेंस है, NPR लिंक्ड फील्ड्स, यहाँ पे सारे चीज मेंशन करे गए हैं, ठीक है। इसीलिए हमारा थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अब सेंसस जो है वो सेंसस एक्ट 1948 के अंडर आता है, यूनियन लिस्ट एंट्री 69, ठीक है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो है ये आपका सेंसस एक्ट 1948 में नहीं आता है, ठीक है। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ सेंसस एक्ट 1948, इसको सेपरेटली करा जाता है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में ये भी कंफ्यूज करा जा सकता है कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस इज पार्ट एंड अंडर सेंसस एक्ट 1948 बोल के कंफ्यूज करा जा सकता है, ओके। सो बी वेरी केयरफुल. So now let's move on to the next one. Consider the following statements about Tribunals Reform Act 2026. Okay. So first statement is, it restores the minimum age eligibility of 50 years for tribunal members' appointments. Second one is, it proposes setting up a national tribunal commission to oversee tribunal administration. And the third one is, under the new process, the government is bound to appoint only the sole candidate recommended with no discretion, right? So correct, again we have to say how many of these statements are correct. So the answer will be option D, 1 and 2, and the third statement is incorrect, right? So पहला statement बिल्कुल भी correct है, एज रिस्टोर करा गया है 250, undoing the 2021 act, impressible legislative override करा गया है यहाँ पे, ठीक है। Now the second statement is also correct, क्योंकि NTC proposed to bring administrative independence to tribunal from parent ministers, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट के पास भी कुछ लिमिटेड डिस्क्रिप्शन है, जो कि वहाँ पे एब्सोल्यूट डिस्क्रिप्शन नहीं है बोला गया था। सो दैट्स व्हाई द थर्ड स्टेटमेंट्स बिकम इनकरेक्ट, एंड यहाँ पे गवर्नमेंट के पास लिमिटेड डिस्क्रिप्शन होगा, राइट। दैट्स व्हाई द थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। और ट्रैप भी था, आपको कंफ्यूज भी कराया गया था, नो डिस्क्रिप्शन एट ऑल से रिलेटेड। और एक और चीज यहाँ पे है कि आपका एक वेट लिस्ट कैंडिडेट भी होगा, एक सेकंड नेम भी होगा जिसको वेट लिस्ट में डाला जाएगा, ओके। सो दैट्स ऑल्सो बिकम इम्पोर्टेंट. So now let's move on to the next one. Consider the following statements regarding 12th BRICS Environment Ministers meeting. पहला statement है, BRICS ministers oppose the EU's carbon border adjustment mechanism, calling it unilateral, punitive, discriminatory. And the second one is, nearly 90% of India's exports to EU falling under CBAM framework comes from the iron and steel sector. Third statement है हमारा, the minister called on developed countries to triple adoption finance to developing countries by 2030. करेक्ट बताना है कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है आउट ऑफ द 3, एंड आंसर विल बी ऑप्शन ए, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड अगेन गलत हो जाता है हमारा, है ना। पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि EU के अभी जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने ऐसा रिसेंटली स्टेटमेंट दिया है अगेंस्ट CBAM, दैट्स व्हाई द फर्स्ट स्टेटमेंट बिकम्स करेक्ट। सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट हम करते हैं EU में, उसमें सबसे ज़्यादा हम आयरन एंड स्टील का करते हैं, राइट। बट एंड बिकॉज ऑफ द CBAM फ्रेमवर्क हमारा जो एक्सपोर्ट है EU का वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो रहा है, ओके। थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा एकदम गलत हो जाता है, ठीक है, सही नहीं है ये, यहाँ पे गलत है। द कमिटमेंट क्या बोला है यहाँ पे 2030 ना, ओके 2035 है, ओके। दैट सो हमने यहाँ पे डेट चेंज करके आपको कंफ्यूज कर दिया था, राइट। एंड एग्जाम में भी ऐसे ही होता है, सिंपल। सो बी प्रिपेयर्ड एंड रिमेंबर द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, डेटा, राइट, क्योंकि वो अगर डायरेक्टली पूछा जा रहा है एग्जाम में, जा सकता है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, ओके। अब CBAM जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट वाला है, ये कौन कौन से सेक्टर के ऊपर आता है, तो ये आपको कवर करता है आयरन एंड स्टील को कवर करता है, अल्युमिनियम को कवर करता है, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये सारे सेक्टर्स को कवर करता है, एंड बिकॉज इट्स क्या करता है, मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, ये इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है, राइट। दैट्स वाई EU इनके ऊपर कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मतलब कुछ एक्स्ट्रा अलग से वो चार्जेस या टैरिफ्स लगा देता है, ओके। एंड दैट्स वाई जो हमारा एक्सपोर्ट है वो रिड्यूस हो जाता है ना। So the next question is, consider the following statement regarding the Supreme Court's ruling on execution by hanging. पहला statement कह रहा है, the court held that union government must mandatorily undertake a review of the execution method through an expert body. Second है section 345 clause 5
Section 354, Clause 5 of the CRPC, which prescribes hanging, correspond to Section 393, Clause 5 of the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023. And the third one is the court held that lethal injection, as practiced in the US, has consistently been free of botched executions. Correct statement बताना है कितना correct हो जाएगा? So the answer will be option B. Only one of the statement is correct, and that is second statement. पहला और तीसरा हमारा statement यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है, court clarified that court only clarified a review, not precluded. It did not mandated one. ठीक है, court ने mandatory नहीं बोला है. It had just said to review it. Okay, and that's why first statement becomes incorrect. Second हमारा correct है, क्योंकि जो CRPC में hanging से related article था उसको continue करा गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, BNSS 2023 में, right? एंड द थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि यूएस में जो लीथल इंजेक्शन के थ्रू हैंगिंग वगैरह कराया जाता है उसमें दैट इज़ नॉट 100% सेफ एज वेल, है ना, उसमें भी कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, डिले हो सकता है, राइट? सो इसीलिए हमारा थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे फ्री बोला था, बट इट्स नॉट फ्री, यहाँ पे भी डिले है एंड अनएंटिसिपेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. दैट्स व्हाई द थर्ड स्टेटमेंट्स बिकम इनकरेक्ट, राइट? एंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट केस हम याद जिसको रिमेंबर करेंगे, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन दिया था, राइट, 1980 में, है ना. एंड 1982 का 83 का एक और केस है, दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया था हैंगिंग एज कॉन्स्टिट्यूशनल, राइट. सो दिस टू आर द इंपॉर्टेंट जुडिशरी केसेस related to this question that we must remember. So now let's move on to the next one. Consider the following statement on the PM CARES fund. Okay, पहला statement है, the fund's income from interest payment in financial year 24-25 was nearly equal to its total donation received that year. Second, the corpus grew mainly because it was shifted from saving accounts to fixed deposits. And the third one is the PM CARES is registered as a statutory body under the RTA Act 2005 and is legally bound to share its records. Correct बताने हमें कितने statements correct हो जाएगा? So the answer will be option C, that is first and second statement is correct. Third statement हमारा incorrect हो जाता है यहाँ पे. पहला एकदम सही है, क्योंकि अभी 475 करोड़ इंटरेस्ट कम वर्सेस 480 करोड़ डोनेशन हुआ था फाइनेंशियल ईयर 2024-25, जो कि नियरली मैच करता है, राइट. सेकंड स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि कॉर्पस को एफडी में मूव कर दिया गया था 2023-24 में, दैट बूस्टेड द इंटरेस्ट इनकम. ओके, एंड द थर्ड वन इज इनकरेक्ट, क्योंकि पीएम केयर्स एक पब्लिक ट्रस्ट नहीं है, ठीक है, public authority नहीं है. It is a private public charitable trust and it does not fall under the statutory body and it can refuse RTI applicability as well. ठीक है, so we must remember this point कि PM care funds जो है वो RTI के अंदर नहीं आता है. It has RTI exemptions. ओके, और PM care funds कब क्रिएट करा गया था? ये मार्च 2020 में क्रिएट किया था ड्यूरिंग द कोविड टाइम, है ना. So now our next question is, consider the following statement regarding the transition from MG Narega to VBG Ramji Act. Okay, so पहला statement कह रहा है, VBG Ramji formally replaced MG Narega with effect from April 1, 2026 as originally announced. Second है, the notified minimum wage norm under VBG Ramji is 300 per day. And the third statement is employment generation in April-July 26-27 declined by about 43% from the average of the preceding 2 years. हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा. ऑप्शन ए बी सी डी है आपके पास, कमेंट करें, आंसर बताएं इसका आंसर. So the correct answer is option D, 2 and 3. Okay, the first statement is incorrect, क्योंकि वीवीजी राम जी को कब इनैक्ट करा गया था, कब फोर्स में आया था, तो ये अप्रैल 1 को ना होकर जुलाई 1 हुआ था 2026. दैट्स व्हाई द फर्स्ट स्टेटमेंट्स बिकम इनकरेक्ट. सेकंड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल भी सही है, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम वेज जो है वो 300 पर डे है, नोटिफाइड ऑन जून 30, 2026. जो पहले हुआ करता था वो 100 रुपीज़ पर डे हुआ करता था प्राइसेस, राइट. एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो 43% क्रैश हो गया है, राइट. इन द प्रीसीडिंग 2 years एवरेज इन द सेम 4 months, पिछले 2 साल का एवरेज अगर हम देखें ये 4 महीने का, तो 43% रिड्यूस हुआ है. दैट इज अ कंसर्निंग डेटा. ओके, सो वीवीजी राम जी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविक मिशन ग्रामीण. ओके,
एंड हाउ मच बजट वाज अलोकेटेड फॉर इट इन 26-27? तो बजट था 95,692 करोड़ का बजट मेंशन करा गया था, अलॉट करा गया था. Okay, so now our next question is, consider the following statement regard on corporate investment trends in India. पहला स्टेटमेंट हमारा कह रहा है, माइकल Cleckey's principle of increasing risk explains why smaller firms face proportionately steeper interest costs than larger firms. Second कह रहा है, corporate investment as a share of India's GDP has now fallen below the level seen during the 2008 global financial crisis. And the third statement is, a cut in market interest is likely to significantly revive investment among both small and large firms equally. है ना? तो हमें 3 स्टेटमेंट्स हैं, बताने हैं कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाएगा. आंसर पहले ही आ गया, चलो कोई बात नहीं, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 1 एंड 2, क्योंकि तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा गलत हो जाएगा. ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा बिटवीन बोथ द स्मॉल एंड लार्ज फॉर्म्स में. ओके, हम डिस्कस करते हैं अभी आगे. पहला स्टेटमेंट सही है क्योंकि ये थ्योरी बिल्कुल भी एट्रीब्यूट करता है स्मॉलर कैपिटलिस्ट फेसेस स्टीपर क्रेडिट कॉस्ट कर्व से रिलेटेड है. ओके, सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है क्योंकि पोस्ट डिनोमिनेशन डिक्लाइन हैज पोस्टेड इन्वेस्टमेंट शेयर ऑफ जीडीपी बिलो इवन ग्लोबल फाइनेंशियल एरा जो आया था उससे भी कम नीचे हो चुका है. इट हैज बीन पुश्ड. ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है क्योंकि rate cuts have limited effect on credit constrained small firms and no effect on demand constrained by large firms. ठीक है, it does not equally revives both and that's why the third statements become incorrect. Okay, so that's all in this question. Now let's move on to the next one. Consider the following statement on India's crude oil imports July 2026. पहला स्टेटमेंट है हमारा, the 41% rise in India's crude import bill was primarily driven by higher volumes rather than higher prices. Second, crude oil imports accounted for around 88.5% of India's total crude oil consumption in July. And the third statement is, revenue from India's petroleum product exports rose to $5 billion in July 26, up from $3.3 billion a year earlier. है ना? So यहाँ पे कुछ exact data figure mention करा गया है, so be very careful about it. एंड आंसर द क्वेश्चन क्या हो जाएगा ऑप्शन ए बी सी डी में से. सो द आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है. पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है. राइट, पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है क्योंकि यहाँ पे दो वॉल्यूम है प्लस 13.3% एंड प्राइस बास्केट जो कि एवरेज 82.04 बिलियन. Right, it was around 82.04 per barrel versus 70.95 per barrel contributed, not primarily volume. Okay, क्योंकि हमारे स्टेटमेंट 1 में 41% राइज का बात करा गया था. राइट, बट दैट्स नॉट द केस. हमारा पहला स्टेटमेंट बिल्कुल भी गलत हो जाता है. राइट, नाउ सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि 88.5% इंपोर्ट डिपेंडेंस फिगर है हमारा. एंड द थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट रेवेन्यू रोज फ्रॉम 3.3 बिलियन टू $5 बिलियन, है ना. और इसीलिए दो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन 2 एंड 3 करेक्ट एंड फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया इंपोर्ट्स 85 to 89% ऑफ क्रूड नीड्स एज इकोनॉमिक सर्वे एनर्जी सिक्योरिटी स्टैटिस्टिक्स टू मेमोराइज. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है. 85 to 89% क्रूड नीड्स जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं, है ना. So that's all in this question. Now let's move on to the next one. So the next question is, we have to match the followings. Okay, so list 1 and list 2 are there, we have to match. चलिए देखते हैं क्या क्या मेंशन है. पहला है सेव अमेरिका एक्ट, इलेक्टोर्स वोटर आइडेंटिटी कार्ड, इंडेलिबल इंक एंड पोस्टल बैलट. ठीक है, पोस्टल बैलेट है. अब यहाँ पे लिस्ट 2 है, प्रपोज्ड यूएस लॉ रिक्वायरिंग प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप फॉर वोटर रजिस्ट्रेशन, वोटर आईडी डॉक्यूमेंट इशूड बाय इलेक्शन कमीशन, अप्लाइड ऑन अ वोटर्स फिंगर इन इंडिया फॉर to prevent duplicate voting, and limited category of remote voting available to select voters. करेक्ट बताना है इसमें कितने करेक्ट है यहाँ पे, है ना. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 2 सिर्फ यहाँ पे करेक्ट है. ठीक है, पहला और दूसरा करेक्ट है, थर्ड एंड फोर्थ है इनकरेक्ट. सो पहला सेव अमेरिका जो एक्ट है ये प्रपोज करा गया बाय यूएस लेजिस्लेशन दैट रिक्वायर्स प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप फॉर वोटर रजिस्ट्रेशन. ठीक है, सेकंड हमारा जो मैचिंग था ये भी करेक्ट है क्योंकि ईपीआईसी जो है ये इंडियाज ईसीआई इशूड वोटर आईडी कार्ड होता है. एंड द थर्ड इज indelible ink is applied on voters finger to prevent repeat voting. And the fourth one is postal ballots in India are restricted to specific categories, service voters, senior citizens, PWD essential services workers, इन सब के लिए है. ठीक है, बट ऐसा देखा जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ तो एरर है ना, कुछ तो गलत दिख रहा है यार. ये यहाँ पे चारों ही करेक्टली मैच्ड है. ठीक है, ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए गलत है. ठीक है, ये चारों ही मैच्ड है. ओके,
ऑल द फोर आर करेक्टली मैच्ड हियर, है ना। इसका आंसर मतलब यही हो जाएगा, 1 2 3 4 ही हो जाएगा, ऑल आर करेक्टली मैच्ड, ठीक है, right. And that's it, and that's all for this question. So now let's move on to the next one. Consider the following statement on India's sixth positive indigenization list. Okay, पहला statement कह रहा है, it is notified by Department of Defense production under the Ministry of Defense to boost domestic manufacturing. Second statement is a majority of the 405 listed items pertain to items used by Indian Coast Guards. And the third one is the detailed list with indicative indigenization timelines has been uploaded on the Srijan Defense portal. हमें बताने कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है, 1 2 and 3, एंड ये ऑप्शंस आर ऑप्शन ए बी सी डी. सो कमेंट आंसर्स, do participate so that our session becomes more interactive, right. So the correct answer will be option D. 1 and 3 is correct. हमारा सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है. चलिए देखते हैं क्यों गलत है. तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ही लाई करता है, ठीक है. और इसको बनाया गया है ताकि हमारा जो इंपोर्ट हम कर्व कर सके, हमारा डिफेंस इंपोर्ट जो है ना, हम इंडिजिनसली ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो हम हमें जो ज़रूरत है वो हम खुद ही मैन्युफैक्चर करें, प्रोड्यूस करें. ओके, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे 405 आइटम ये सारे के सारे कोस्टल गार्ड्स का नहीं था, कोस्ट गार्ड्स का, ठीक है. इसमें से सिर्फ और सिर्फ 16, only 16 out of 405 items pertain to Coast Guards. The majority 389 are associated with defense PSUs. Okay, and the third one is also correct क्योंकि जो लिस्ट है वो सृजन डिफेंस पोर्टल पे अपलोड कर दिया गया है, आइटम वाइज और टाइमलाइन भी अपलोड करा गया, कब क्या प्रोड्यूस करा गया था. ओके, right. So that's all for this question, and now let's move on to the next one. Consider the following statement on India's blasphemous cartilage law framework. Okay, पहला है section 295A of the erstwhile IPC now corresponds to section 299 of भारतीय न्याय संहिता. Second है, in Ramji Lal Modi versus State of Uttar Pradesh 1957 the Supreme Court struck down section 295A as unconstitutional. And the third one is England and Wales abolished the common law offences of blasphemy and blasphemous libel through 2008 legislation. हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं, कितने स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट हो जाएंगे. सो प्लीज आंसर. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारा सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है. अब क्यों है देखते हैं. तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि पुराना आईपीसी में जो था वो था 295A, और अब नया जो हमारा बीएनएस है उसमें सेक्शन 299 आता है. ये इन फोर्स है सिंस जुलाई 2024, एंड दैट्स व्हाई आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. सेकंड स्टेटमेंट जो है वो हमारा गलत था वहाँ पे क्योंकि उसको रिवोक नहीं किया था, अपहेल्ड किया था सुप्रीम कोर्ट ने. ओके, एंड दैट्स व्हाई द सेकंड स्टेटमेंट बिकम्स इनकरेक्ट. अपहेल्ड किया था, ओके, एंड रीजनिंग इट फेल विद इन द पब्लिक ऑर्डर एग्जीक्यूशन अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2. सो इट डिड नॉट स्ट्राइक डाउन, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन नहीं किया था, उसको अपहेल्ड कर दिया था. एंड हमारा थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि सेक्शन 79 ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस एंड इमिग्रेशन एक्ट 2008 ने अबॉलिश कर दिया था, ठीक है, ये लॉ को ऑफेंसेस इन इंग्लैंड एंड वेल्स में. ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर द स्टेटमेंट पार्ट्स. अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि ये हमारा जो एक्ट है ये सिंस कॉलोनियल एरा का ही एक्ट है, ठीक है. बट हमारे जो कॉलोनियल मास्टर्स हुआ करते थे, कॉलोनाइजर हुआ करते थे, यूके, राइट, उसने ये एक्ट को अबॉलिश कर दिया है. और एंड द आयरनी इज दैट इंडिया में ये अभी तक चल रहा है, ठीक है. और सिर्फ यही एक नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे एक्ट है जो यूके ने अपने यहाँ बंद करके रखा है, अबॉलिश कर दिया है, बट हमारे यहाँ वो अभी तक लागू करा जाता है. ओके, right. So that's all in this question. Now let's move on to the next one. Consider the following statement regarding the enzyme helicase. Okay, पहला statement है, helicase uses energy from ATP to break the bonds between complementary bases and separate the two DNA strands. Second statement है, the Y-shaped region created when DNA strands are separated by the helicase is called the replication fork. And the third one is topoisomerases are the enzymes responsible for actually separating the two DNA strands during replication. Correct statement बताना हमें कितना हो जाएगा. So the answer will be option B. फर्स्ट एंड सेकंड हमारा करेक्ट है, थर्ड गलत हो जाता है यहाँ पे. सो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही है क्योंकि हेलिकेज जो है वो एटीपी एनर्जी यूज करता है पेयर को ब्रेक डाउन करने के लिए, अनवाइंड करने के लिए डबल हेलिक्स को, और जब अनवाइंड करता है तो वो टर्म हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क. ओके, एंड तीसरा हमारा गलत हो जाता है क्योंकि टोपोआइसोमेरेसिस ओनली रिलीव द ट्विस्टिंग सुपर कॉइलिंग अहेड ऑफ द फॉर्क. स्ट्रैंड सेपरेशन इटसेल्फ इज हेलिकेज जॉब नॉट देयर्स, ठीक है. तो ये यहाँ पे डिस्टिंक्शन है. टोपोआइसोमेरेसिस सिर्फ और सिर्फ जो ट्विस्टिंग होता है डीएनए का उसको रिलीव करता है, एंड द सेपरेशन इज डन बाय हेलिकेज. ओके, सो दिस देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन दी टू, एंड हमें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है एग्जाम में भी. अगर ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देखे हमें कंफ्यूज कर दिया जाए कि दोनों के बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, दोनों काम एक ही है, ठीक है, सो दैट वुड बी इनकरेक्ट.
राइट, जैसे कि अभी हमने देखा यहाँ पे फंक्शनल डिस्टिंक्शन है दोनों के बीच में, ठीक है, डिस्टिंक्शन है, एंड दैट्स व्हाई द थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा इसी कारण से गलत हो गया था। सो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द रिसेंट यूएई ईरान मिसाइल इंसिडेंट। पहला है, द यूएई accused Iran of firing 2 ballistic missiles at its territory, one of which fell within UAE's territorial waters. Second है, EDNOC, the UAE's state-owned oil company, has had its tanker repeatedly targeted in recent week. And the third है, the Strait of Hormuz, a key global choke point, lies between Iran and the Arabian Peninsula, with the UAE, Oman, and Iran among its littoral states. हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा। ऑप्शन है ए बी सी डी, एंड डू कमेंट, क्योंकि ये हमारा सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, राइट। सो इसको आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि यूएई ने अभी 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स को डिटेक्ट किया था, और सिंस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो वॉर चल रहा है उसमें ईरान हैज बीन फायरिंग मिसाइल्स एट यूएई। ओके, सो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड भी हमारा करेक्ट है, एडीएनओसी टैंकर्स जो है ये रिपीटेडली टारगेट करे गए हैं, एंड द थर्ड वन इज ऑल्सो करेक्ट क्योंकि स्टैंडर्ड ज्योग्राफी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज फ्लैंक्ड बाय ईरान नॉर्थ में, ओमान एंड यूएई साउथ में, और जो और क्रिटिकल चोक पॉइंट भी है, राइट, फॉर ग्लोबल शिपिंग ऑयल, एंड इसके कारण बहुत इंडिया के ऊपर भी बहुत सारा प्रेशर पड़ रहा था फॉर द क्रूड ऑयल गैस रिलेटेड जो हमारा सिचुएशन होता है, राइट, विद इन फ्यू मंथ्स अर्लियर। सो इट इज अ क्रिटिकल चोक पॉइंट, है ना। और मैपिंग के अगर पर्सपेक्टिव से हम देखें तो स्टिल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, मैपिंग के पर्सपेक्टिव से भी, राइट। सो दैट वाज ऑल इन दिस सेशन। आई होप आप लोगों को हमारा सेशन पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूले, कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब एंड बेल बटन दबा दें ताकि आपको आगे हमारा ऐसे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो लेट्स सी यू ऑल इन अनदर सेशन।